Assalamu alaikum. In this video I will teach you people what are the necessary steps to be taken before performing experiments related to electric machines. So first of all, what you have to do is you have to test two things. One, you have to test the terminal board right there on the table, and you have to test the meter, the digital meter or the analog meter, whatever you are using. So first of all, we will test this, because with the help of this we will be testing the terminal board present on the table. So this is a digital multimeter. It can measure the voltage, resistance, capacitance, frequency, and the current in ampere, milliampere, and microampere. Both DC and AC values can be measured for the current as well as for the voltage. Turn on the meter, and first of all we will check if this meter is able to measure voltage or not. So connect probes or connecting wires to the terminals of the DMM और ये मेरे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है जो कि मैंने बिल्कुल नई ख़रीदी है दुकान से. सो मुझे कम से कम इस बात का यकीन है कि ये बिल्कुल सही चलेगी ये बैटरी. सो आई हैव फुल फेथ इन दिस बैटरी. एंड नाउ आई विल सेट दिस वोल्टेज ऑन voltage B and DC value, because this is a DC voltage source, 9 volt battery. 9 volt battery right over here. 9 volt battery. 9 volt battery. So you have to test it whether it is giving you 9 volts or not. So the current voltage is around 7.32 volts. So it means that this meter is working correctly as voltmeter. This battery has been used, that is why the voltage is less than 9 volts. So voltage is appearing over here very near to the expected value, so it means that this voltmeter, this DMM is working correctly as voltmeter. So the first step was to check the meter, and voltmeter is working correctly. Okay, the next step is to check whether the DMM is working correctly as ammeter or not. So this is what we want to do. So what we can do is we can shift this terminal to milliamps, because we are going to find a very small amount of current supplied by this 9 volts. Take any resistor. This is a resistor of 1.5 kilo ohms, and set this to milliamps, and what you can do is you can connect this resistor to this black terminal of the ammeter, and I have connected this yellow terminal to one of the terminals of the battery. And now I will be connecting this terminal of the resistor to this terminal of the battery, and it's 0 milliampere. So now I'm going to connect it, and you can see that as soon as I connected the resistor, current of almost 3 milliampere is flowing through the ammeter. So it means that this meter is working correctly as ammeter. So you can verify using calculator. Approximately 7 volts divided by 1500 will give you approximately 3 milliampere. So this ammeter is working fine. Okay, now just quickly check that this meter is displaying the contents correctly. When you set this knob at volt, it should display millivolt or volt.
when you set this knob and ohm, it should display ohm symbol over here. Similarly, when you display frequency should be here, hertz unit should be here. At microampere should appear. At milliampere should appear. At ampere should appear. So it means that this meter is fine overall. There is no problem with this, because in some meters it is quite possible that if you set this at say microampere or milliampere, you will get kilo ohm or hertz or something else, which indicates there is some problem inside the meter. Okay, say for example, if this meter is not working correctly as voltmeter or ammeter, then it means that it might be possible that there is some problem with the fuse of this meter, especially while measuring the current. If you get 0 ampere, 0 milliampere or 0 microampere while the circuit is on, then it means that there is some problem. One of the reason might be that there is some problem inside the meter, and you have to check the fuse. To check the fuse, you should have a screwdriver, and you have to unscrew the screw present over here, similarly present over here and here. For the time being, there are no screws in these slots, only this slot has the screw, so I will unscrew the screw. Now I have taken out the screw, and now you can open this multimeter like this. Very carefully you should open it. Don't apply too much force. The battery has been displayed. ये देखें, ये बैटरी जो है ये बाहर आ गई है. ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीमीटर में ये प्लस का निशान है, ये माइनस का निशान है. तो ये प्लस वाली साइड है बैटरी की, ये इस साइड पे आएगी, और आपने ऐसे इसको प्लेस कर देना. ओके, ये दो फ्यूज़ेस हैं मल्टीमीटर के, एंड both are I think related to the protection of this multimeter. So if you feel that ammeter is not working, voltmeter is not working, then check out these fuses. इसको निकालने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप स्क्रू ड्राइवर जो है वो यहाँ पे रखें, और फिर ज़ोर लगा के उसको ऐसे ज़ोर लगा के उसको फिर आप इस तरीके से उसको निकाल लें. ठीक है, अभी मेरे हाथ में एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुश्किल पेश आ रही. तो ये फ्यूज़ जो है ये बिल्कुल सही है. इसकी वायर शायद आपको नज़र ना आए ब्राइट लाइट की वजह से. देखिए ये वायर जो है कंप्लीट है, टूटी भी नहीं है, कोई ब्लैक बैकग्राउंड भी नहीं है इसका. इस मीन ये फ्यूज़ बिल्कुल सही है. सिमिलरली इस फ्यूज़ को आप खोल के चेक करें और आप देखेंगे कि इसके वायर जो है वो बिल्कुल सही है. ओके, फ्यूज़ को चेक करने का एक और आसान तरीका ये है, अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं और आपको नज़र नहीं आ रहा प्रॉपरली, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक और मल्टीमीटर ले लें और उसको आप सेट करें यहाँ पे. ये बीप है, डायोड का निशान बना हुआ बीप है, इसके ऊपर इसको सेट कर दें. और ये जो दो टर्मिनल्स हैं, दो टर्मिनल्स को यूज़ करके आप इन दो टर्मिनल्स को इसके अक्रॉस लगा दें. ठीक है, ये देखें, ये दो टर्मिनल्स मैंने फ्यूज़ के साथ कनेक्ट किया है, और यहाँ पे अब ज़ीरो रीडिंग आ रही है और आपको बीप की आवाज़ भी आ रही है. इसका मतलब ये है कि ये फ्यूज़ बिल्कुल सही है. ठीक है, बीप की आवाज़ आ रही है, रीडिंग ज़ीरो है. ज़ीरो का मतलब ये है कि कंडक्टर रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो है तकरीबन. सो इट मीन्स दैट ये फ्यूज़ बिल्कुल सही है. अगर बीप की आवाज़ सुनाई ना दे या यहाँ पे OL लिखा नज़र आ जाए, इसका मतलब ये है कि ये फ्यूज़ जो है वो ब्लो हुआ है और आपको ये फ्यूज़ जो है चेंज करना पड़ेगा. तो इस फ्यूज़ को आप ऐसे यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. तो ओके, ये देखें कि ये जो फ्यूज़ है, यहाँ पे जो लगने वाला फ्यूज़ है, उसकी रेटिंग होनी चाहिए 10 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाना चाहिए आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लगाना चाहिए 0.5 एम्पेयर का फ्यूज़.
0.5 एम्पियर, जो कि 500 मिली एम्पियर बनता है। अब मेरे हाथ में 2 फ्यूज़ेस हैं, एक ये फ्यूज़ है, शायद क्लियर नज़र ना आए आपको। इस साइड पे 4 एम्पियर लिखा हुआ है, तो 4 एम्पियर, अभी फ़िलहाल 10 एम्पियर का फ्यूज़ नहीं है, तो 4 एम्पियर का फ्यूज़ जो है मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ सेफली, ठीक है। और ये वाला जो फ्यूज़ है, इसके ऊपर यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ पे करके 500 लिखा हुआ है। 500 का मतलब है 500 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर का मतलब 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर का फ्यूज़ जो है मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। अच्छा, ये ना करें कि 4 एम्पियर का फ्यूज़ इधर लगा लें, तो उससे क्या होगा, सर्किट डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये जिस सर्किट को प्रोटेक्ट कर रहा है उसको उस सर्किट को हाई करंट नहीं मिलना चाहिए। 4 एम्पियर लगाने से हाई करंट मिल जाएगा और वो सर्किट जो है उड़ जाएगा। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.5 एम्पियर, बस वही उसी रेटिंग का फ्यूज़ जो है आपने यहाँ पे लगाना। इसी तरह कोशिश करें कि ये यहाँ पे 10 एम्पियर लिखा हो, यहाँ पे 10 एम्पियर लगाएं। 10 एम्पियर से कम भी हो कोई मसला ही, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे 0.5 से कम भी हो जाए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा हो जाए फिर इशू है। तो ये ज़रा इस टेक्निकल बात को समझने की कोशिश करें। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे। तो अब ये कंप्लीट हो गया, और आप चेक करें कि ये बोर्ड है मल्टीमीटर का, बैटरी के जो 2 टर्मिनल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। और कोई ब्लैक निशान नज़र नहीं आ रहा आपको, इट मीन्स ये वोल्टमीटर जो है ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। कि ये एक और मल्टीमीटर मैंने ओपन करके चेक किया उसको, तो इसके फ्यूज़ेस जो हैं बिल्कुल ठीक ही हैं। और मैंने वही प्रोसीजर अप्लाई किया फ्यूज़ चेक करने का जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। इसके फ्यूज़ेस जो हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी ये करंट जो है ये मेजर नहीं कर रहा। करंट 0 एम, 0 मिली एम, 0 माइक्रो एम के करीब आ रहा है। और उसकी वजह ये है कि ये बोर्ड सड़ चुका है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये ब्लैक निशान यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो किसी ने इसको मिसयूज़ किया, और ये देखें, ये यहाँ पे ये ब्लैक निशान आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बोर्ड जो है ये मल्टीमीटर जो है ये उड़ चुका है। फ्यूज़ेस भी नाकाम हो गए हैं इसको प्रोटेक्ट करने में। सो अल्लाह करे कि ये ठीक हो जाए। बहरहाल तो ये बोर्ड, ये जो मल्टीमीटर है ये नकारा हो गया। कि अब ये इन दोनों पीसेस को जोड़ने का वक्त आ गया। तो आप इस पीस को एज इट इज़ उठा सकते हैं, ठीक है। ये पीस निकल गया, और इसको आप इस तरह इसके ऊपर रख दें, ठीक है। ये देखें टक की आवाज़ आई है, इसका मतलब फिक्स हो गया। और इस पीस को उठा के आप ऐसे इसको आपने क्या कर देना, प्रेस कर देना, ज़ोर से प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि ये बैठ जाए ये पीस, ठीक है। अब ये पीस बैठ चुकी है, ठीक है। अब आप चाहें तो स्क्रू लगा लें, नहीं चाहते तो ना लगाएं स्क्रू, इट्स अप टू यू, ठीक है। स्क्रू लगाएं वो ज़्यादा बेहतर है। और इसको इस तरीके से इसको आप बंद कर दें, ठीक। और ये देखो ये मल्टीमीटर जो है ऑन हो चुका है। ओके जी, अब हम टर्मिनल बोर्ड को टेस्ट करने जा रहे हैं। ये टर्मिनल बोर्ड है, और ये बड़ी सप्लाई है AC DC वोल्टेज कंट्रोल। तो सबसे पहले आपने इंश्योर करना है कि पीछे से स्विच ऑन है। तो पीछे वाला जो स्विच है ये पीछे लगा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, ये स्विच लगा हुआ है। और आप ये लाइट जल रही है, इसका मतलब ये कि सप्लाई यहाँ आ रही है, और यहाँ से होती हुई उसमें जा रही है, उस बॉक्स में जा रही है, वेरिएबल वोल्टेज, यहाँ से आप वोल्टेज को वेरी करते हैं, ठीक है। और इसको आप ऑफ़ भी कर सकते हो। ये ऑफ़ हो गया। ऑन करने के लिए इसको ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट DC एक्सपेरिमेंट्स करें। DC मशीन वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको करने के लिए इसका और इसका चलना ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला पार्ट इस्तेमाल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, फर्स्ट स्टेप टर्मिनल बोर्ड को टेस्ट करने का वो ये है कि आपने यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे वोल्टेज 190 के करीब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज वेरी हो रहे हैं
इस रेंज में या नहीं। तो मैं वोल्ट मीटर जो है यूज़ करने जा रहा हूँ। इसको मैं वोल्टेज पे सेट करूँगा। ठीक है, ये 2 तारें लूँगा मैं, एक मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और एक यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इस टर्मिनल को पहले टेस्ट करूँगा और इसको 190 पे सेट करूँगा। 190 पे फिक्स 190 पे सेट हो गया। इसको अब ऑन करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने ऑन किया तो ये तकरीबन 190 के करीब है, 210 वोल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। इसका मतलब फिक्स पे ये सही काम कर रहा है। जब मैं इसको 0 पे करता हूँ तो ये देखिए 0 वोल्ट हो गया। जब मैं इसको 0 to 190 करता हूँ इस साइड पे, तो अब वोल्टेज जो है वो वेरी यहाँ से होंगे। तो ये देखिए मैं वोल्टेज को वेरी कर रहा हूँ, नॉब को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो ये वोल्टेज जो है वो कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो साइड है, ये जो टर्मिनल है, दो टर्मिनल्स हैं, ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अब मैं इसको ऑफ़ करने जा रहा हूँ। ऑफ़ कर लिया। अब मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से इसको निकाला, इसमें डाल दिया, इसको यहाँ से निकाला, इसमें डाल दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा, वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट भी सही काम कर रहा है इसको चेंज करने से। ठीक है, तो इसको आप डिक्रीज़ कर दें, डिक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ करें तो वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ हो। तो ये 2 पार्ट्स चेक करने ज़रूरी है इस एक्सपेरिमेंट में। इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, 0 पे रख के ऑफ़ कर दिया। ओके, बिलफ़र्ज़ अगर यहाँ पे वोल्टेज 190 के करीब नहीं आ रहे, या वोल्टेज वेरी नहीं हो रहे इस रेंज में, या वोल्टेज वेरी नहीं हो रहे इस रेंज में इन टर्मिनल्स के ऊपर, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूज़ेस जो हैं ये चेक करने पड़ेंगे। ये 3 फ्यूज़ेस यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे, ये 3 फ्यूज़ेस यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे, और 3 फ्यूज़ेस जो हैं यहाँ पे चेक करेंगे। ये 4 एम्पेयर का फ्यूज़ है, ये 2 एम्पेयर का फ्यूज़ है, ये 4 एम्पेयर का है, ये 6 एम्पेयर का है। तो अगर ये वाला फ्यूज़ उड़ जाए तो आपने 4 एम्पेयर का फ्यूज़ लैब अटेंडेंट से ले लेना है। 4 एम्पेयर का फ्यूज़ इसमें डालना है। इसको ऐसे आप खोलेंगे, रोटेट करके आप इसको खोल दें। ये देखें ये फ्यूज़ आया बाहर। और जब आपने डालना हो तो आपने इस तरह से डालना है। ठीक है, निकालना हो तो पीछे से सारी सप्लाई ऑफ़ करके, इधर से ऑफ़ करके, इसी तरह पीछे से उसको ऑफ़ करके आपने फ्यूज़ जो है उसको हैंडल करना है। और बेहतर यही है कि आप इस फ्यूज़ को जो है वो हाथ ना लगाएं, इसको हाथ ना लगाएं, बल्कि इस ब्लैक नॉब की मदद से ही उसको बाहर निकालें ऐसे, और इसी ब्लैक नॉब की मदद से इसको अंदर डाल दें, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, सो बी वेयर, स्पेशली जब आपने इस फ्यूज़ को निकालने हो चेक करने के लिए। इन फ्यूज़ेस का उड़ना बहुत रेयर है, ज़्यादातर ये 3 फ्यूज़ेस उड़ते हैं और ये 3 फ्यूज़ेस उड़ते हैं। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ इनको चेंज करना हो तो पीछे से ऑफ़ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वरना आपको शॉक लग जाएगा। ठीक है, और निकालना हो, अगर आपने निकालना हो तो बहुत ध्यान से आपने इनको निकालना है। तो इसको मैंने ऑफ़ कर दिया पीछे से। और ये मैं ब्लैक नॉब की मदद से ही इसको निकाल रहा हूँ। ये देखें, मैं फ्यूज़ को टच ही नहीं कर रहा, सिर्फ ब्लैक नॉब की मदद से ही इसको निकाल रहा हूँ। ये देखें, ये ऐसे मैंने निकाल दिया फ्यूज़। मैंने हाथ लगा के फ्यूज़ को बाहर नहीं लेकर आया, बल्कि ब्लैक नॉब की मदद से ही इसको मैं अंदर डाल रहा हूँ, और ब्लैक नॉब की मदद से ही उसको बाहर निकालूँगा अगर मुझे शक हो कि ये फ्यूज़ ख़राब है।